Hello, Mary. How are you? Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary I'm continuing to bring you the I'm Gospel of good. Mark. And okay, you have to go ahead. Go ahead. Welcome again. We were in Mark chapter 6 when we finished last time, and let's continue there. पाकिस्तान के लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। फिर मौका और मैं आपके लिए मरकज की संजीद का मुतालिया लेकर आए हैं और जिस तरह कि हम इसको पढ़ रहे हैं और छठे बाब तक हम आ चुके हैं। Now, remember, the Gospel of Mark was written to harmonize both Matthew and Luke, so he took passages from both of those to show that both are legitimate. और जिस तरह कि आपको पता है मरकज की ये अंजीज का ज्यादातर इसके हवाले जो है वो लुका से और मत्ती से लिए गए हैं। और इस अंजील के अंदर ये बताया गया है कि मत्ती और लुका से हवाले लिए गए, तो इसका मतलब वो भी जो है हकीकी किताबें हैं। And in this first half of the book, we have seen that Jesus has showed his earthly glory clearly by triumphing over his opposition. और जिस तरह कि हमने देखा कि यीशु मसीह की जो जमीनी जलाल और खिदमत था उसमें बहुत सारी मुखालफत शामिल थी। First of all, his works, that is, the miracles that he did, confirmed his authority to preach the kingdom of God message. That is, he is the king and he's going to bring the kingdom. और हम देखते हैं मसीह यीशु का जो इख्तियार यानी उस मौजूदों के जरिए से जाहिर होता है, वो हमें बताता है कि यीशु मसीह की जो है वो बादशाहत आएगी। In the second section, he displayed this glory throughout the Galilean area, all around the towns of the Sea of Galilee. और हम देखते हैं कि मसीह यीशु की खिदमत का जो दूसरा हिस्सा है जो गलील के झील के और उसके इर्द नुमा में उन्होंने किया, जो बताता है कि यीशु मसीह का इख्तियार हर चीज पर है। Today's lesson is going to be Jesus warning his disciples of human leaven. और आज हम सीखेंगे यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जो है वो बताते हैं कि जो इंसानियत है उसके मुतालिक में और अपना अख्तियार उन्हें देते हैं। What is human leaven? It is taking the power and traditions of men and using it for man's own glory instead of God's. और जो इंसानियत है इसके मुतालिक क्या शागिर्दों को बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो इंसान है वो खुदा से हिकमत को लेकर अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ना कि खुदा के जलाल के लिए। Remember, when Jesus came to the earth, he was telling all of the people that they needed to repent, for the kingdom of God was at hand. और अगर आपको याद हो तो यीशु मसीह की मनादी क्या थी कि हर कोई तौबा करे क्योंकि आसमान की बादशाही उसके हाथ में है। What he was telling them is the way that they were worshiping God was unpleasing to God, and they needed to change their ways and turn back to God by listening to what Jesus said. क्योंकि हर कोई जो है खुदा की मर्जी के मुताबिक इबादत नहीं कर रहा था, उसकी प्रस्तिश नहीं कर रहा था। इसीलिए यीशु मसीह आए ताकि वो उसे तमाम लोग मसीह की तालीम को सुन सके और मसीह की मर्जी के मुताबिक उसको जलाल दे सके। However, we're going to see that the Jewish leadership, both the religious leadership and the political leadership, rejected Jesus' message, wanted to use their own customs and their own power for their own glory and not for the glory of God. तो भी हम देखते हैं कि जो यहूदी थे, क्योंकि जो कबाइल थे या उनके जो सरदार थे,
उन्होंने मसीह को कबूल ना किया और वो अपनी ही रवायात में, यहूदी जो रवायात थी उनको जानते और उन्हीं का बढ़ावा देते थे और उन्होंने खुदा की लायक मर्जी के मुताबिक उसकी तमजीद ना की। Because they would not accept Jesus' message, Jesus said, "You cannot put new wine, that is his message of majesty and mercy, into old wineskins," the Jewish leadership. और इसीलिए कि यीशु को उन्होंने कबूल ना किया तो यीशु ने कहा, क्या उनको कहा था कि तुम नई मैं नहीं हो। नई मैं का मतलब क्या है? जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया वो नए इंसान भी ना बने। So he would need new wineskins, and he's going to select his disciples to be the wineskins that would carry his message throughout the world. और नई मैं क्या है, नई स्किन क्या है, नई इंसानियत क्या है, उसके लिए उसने अपने 12 शागिर्दों को चुन लिया ताकि वो उसकी तालीम को दुनिया तक पहुंचा सके। Because the area that he needed to cover was so overwhelming, he would not only do the miracles himself and preach the kingdom of God message himself, he commissioned 12 of his disciples to go out with a warning. क्योंकि यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत में वो बहुत सारे इलाकों में खिदमत करते रहे और उस पैगाम को जो तौबा का मनाती का पैगाम था उसे फैलाते रहे। तो भी बाज इलाकों में उन्होंने अपने शागिर्दों को भेजा ताकि उनकी जमीनी खिदमत में ज्यादा से ज्यादा इलाकों में इस पैगाम को पहुंचाया जाए और इसके लिए उन्होंने अपने 12 शागिर्दों को दो दो कर भेजा। And his warning is when you go out and you preach the kingdom of God message, you need to trust on God for his provision and his protection. और उन्हें ये भी बताया गया कि जब तुम मनाती का ये पैगाम दोगे तो क्या होगा कि तुमने इंसानों पर भरोसा नहीं करना है बल्कि खुदा के मंसूबे पर भरोसा करना है। In episode 2, we will see that Jesus' obvious authority will be rejected by those who have hardened hearts. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो मसीह यीशु की मुखालफत थी उस मुखालफत में हम देखते हैं उन्होंने यीशु को रद्द किया, उन्होंने कबूल ना किया, जिनके जो दिल है वो सख्त हो चुके थे। In episode 3, 8, 11 through 21, we will see that the Pharisees will reject Jesus' identity while the disciples misunderstood his mission. और हम तीसरी इसके एक साथ के अंदर देखते हैं कि ना सिर्फ यहूदियों ने या सरदार कायनों ने मसीह यीशु का कबूल करने से इनकार किया बल्कि शागिर्दों ने भी उसकी हकीकी पहचान को ना जाना। Now, in this section, we're going to see that there will be 3 chiasms, one for each of the episodes. आज हम जो हवाला पढ़ेंगे इसके अंदर हम जो है वो तीन जो है की आजम का मतलब होता है जो गहरी बातें हैं उसको जान सकेंगे। In the one we will cover today, Jesus will commission or send out his 12 to preach and perform miracles. That will be the A. और आज जो पहले हिस्से में हम सीखेंगे कि यीशु मसीह जो है अपने 12 शागिर्दों को चुनते भी हैं और उन्हें इख्तियार भी देते हैं ताकि वो बीमारों को अच्छा कर सके। The A prime will be the 12 coming back and reporting how successful the mission was. और ए प्राइम हिस्से में हम सीखेंगे कि ये जो 12 भेजे गए थे ये वापस आकर यीशु को रिपोर्ट भी देते हैं और बताते हैं कि जिस मिशन के लिए, जिस मकसद के लिए तूने भेजा था वो किस कदर कामयाब हुआ है। Now remember, in chiasms, the central point, the main point, is in the center of the chiasm, and in this case, the B will be Herod's corruption led to John the Baptist's death. और इसका जो दरमियानी हिस्सा है यानी बी हिस्सा जो कि ज्यादा अहम है, इसमें हम सीखेंगे
हेरोदीस के मुतल्लिक, और हेरोदीस जो बहुत ही एक करप्ट किस्म का बादशाह था, और उसके मुतल्लिक हम जानेंगे। The next chiasm, we'll do this next week, will be the A and A prime, Jesus feeding the 5,000 and feeding the 4,000 with a few loaves of bread and fish. और अगले हफ्ते हम सीखेंगे कि यीशु मसीह जो है 5,000 लोगों को जो है 5 रोटियों के जरिया से शेयर करते हैं, और ये वाला हिस्सा जो है हम अगले हफ्ते सीखेंगे। The B and B prime in that section will be Jesus showing his authority over creation and over demons. और बी और बी प्राइम हिस्से में हम देखते हैं यीशु मसीह का अख्तियार, यीशु मसीह का जो है कुदरत के ऊपर अख्तियार, और और जो बदरूहों है उन्हें निकालने का अख्तियार। The C and C prime will be Jesus healing people both inside and outside of Israel. That is, his power is not only related to Israel, he can do it to anyone in the world. और फिर सी हिस्से में हम देखेंगे यीशु मसीह का जो है वो अख्तियार, जिसमें उसने ना सिर्फ यरूशलेम के अंदर काम किया, बल्कि बाहर भी, बाहर का मतलब है पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह का रहम। Then the D, the center section, the main point is Jesus will again rebuke the Jewish leaders for defiling God's word, that is, um, submitting God's word into submission and putting laws and traditions ahead of God's word. और फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह यहूदी जो सरदार थे उन्हें यीशु मसीह डांटते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने मसीह के कलाम की ज्यादा अहमियत से ज्यादा जो है यहूदी रवायात को अहमियत देना शुरू की। Then, in our final chiasm, 8:11 through 21, we're going to see that the Pharisees reject Jesus by asking for another sign, and he rebukes the disciples for misunderstanding what leaven is. और आखिरी हिस्से में हम सीखेंगे कि जो फरीसी थे वो यीशु से एक निशान को तलब करते हैं, निशान को मांगते हैं, और यीशु उन्हें कोई निशान नहीं देता। Then the B, the center point of this final chiasm, is Jesus' warning the disciples against the powerful Jewish leaders, both Herod and the religious leadership, the Sanhedrin. और अभी जो हम की आजम सीखेंगे हदीस के जो इख्तियार है, और यहूदी एक कौंसिल होती थी जो उन्होंने बनाई हुई थी, उसके मुतालिक हम जानेंगे। Now, Mark 6:7 through 16 is taken from Luke 9:1 through 6. और मरकज की इंजील का छठा बाब जो हम पढ़ने को है, और ये सारे जो है ये लूका तबीब जो है उसकी अंजील से लिए गया हिस्सा है। But then notice that again we switch back to Matthew 14, chapters 14 through 17 for Mark 6:17 through 9:32. और हम फिर मत्ती की इंजील उसके 14वें बाब और उसके 17वें बाब में हम फिर वापस जाएंगे कि जो मरकज में लिखा है ये चीजें जो है मत्ती में भी लिखी गई हैं, और मरकज ने ये चीजें वहां से ली हैं। So this first chiasm has both verses from Matthew and from Luke. और आज जो हम हवाला पढ़ेंगे ये दोनों अनाजील में लिखा गया है, यानी लुका में भी और मत्ती में भी, यानी ये मरकज में जो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों अनाजील में पहले लिखा गया है। The part from Luke will be Jesus commissioning his 12 and the 12 reporting back to him. और हम देखते हैं लुका में क्या लिखा हुआ है कि जो इस आज मरकज में भी पढ़ेंगे कि यीशु ने 12 शागिर्दों को मुकर्रर किया और उन्हें इख्तियार दिया, जिन्होंने वापस आकर यीशु को रिपोर्ट भी दी। The part from Matthew will be Herod's corruption and his poor leadership of John the Baptist will lead to John the Baptist's death.
और इसके बाद जो हम मरकस की इंजील में पढ़ेंगे, हेरोदीस जो था वो एक करप्ट बादशाह था, और किस तरह उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो है वो कत्ल किया। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये दर हकीकत मरकस ने मत्ती से लिया हुआ है, क्योंकि मत्ती में ये लिखा हुआ है। Okay, so let's go ahead and read Mark chapter 6, verses 6 through 13, please. आए मेरे साथ मरकस की इंजील उसका छठा बाब और उसकी छठी आयत से 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। और उसने उनकी बेएतकादी पर तहज्जुब किया, और वो चारों तरफ के गांवों में तालीम देता फिरा। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर दो दो करके भेजना शुरू किया, और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा, और हुक्म दिया कि रस्सा के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी, ना झोली, ना अपने कमर बंद में पैसे, मगर जो जूतियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसमें रहो जब तक वहां से रवाना ना हो। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द झाड़ दो, ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मनादी की कि तौबा करो, और बहुत सी बदरूहों को निकाला, और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। आमीन। Okay, so the first thing we see is Jesus continued to teach throughout the Galilee area in a circuit. That he would go to a village and heal and teach, then go to another village and heal and teach, and continue to go through these circuits. पहली चीज जो हम इसमें देखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह मुसलसल जो है अपनी खिदमत को कर रहे हैं। यानी गलील की झील के इस इर्द गिर्द में जितने भी गांव थे, वो पहले किसी एक गांव में जाते, तालीम देते, उनके बीमारों को चंगा करते, फिर वापस दूसरे गांव में जाते, उन्हें तालीम देते और उन्हें उनके बीमारों को चंगा करते। दैट्स मीन कि यीशु मसीह मुसलसल जो है इस खिदमत को कर रहे हैं। Let us turn back to Mark chapter 1, verses 35 through 39, and read this. This is the first time he began teaching in a circuit. आए मेरे साथ मरकस की इंजील और उसका पहला बाब निकालेंगे, और उसकी 35 वर्ष से 39 वर्ष तक हम देखते हैं। और सुबह ही दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें, ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। आमीन। आमीन। So Jesus is continuing to go from village to village, teaching, healing the people, and teaching, repent for the kingdom of heaven is at hand. That is, believe he's the Messiah and accept that. And if the nation of Israel would do so, he would inaugurate the kingdom. और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह मुसलसल जो है उनके गांवों में, शहरों में जाते रहे, उन्हें तालीम देते रहे और उनके बीमारों को अच्छा करते रहे, ताकि उन्हें बता सके कि वो ही मसीह है और वो मसीह को कबूल करें और तौबा करें, क्योंकि खुदावन की बादशाही मसीह के हाथ में है। Now, despite his being rejected in his hometown, Jesus continued to teach in the surrounding villages. हम देखते हैं कि मसीह यीशु जब अपने इलाके में गए, यानी नासरत के इलाके में, तो नासरत के इलाके के लोगों ने यीशु को कबूल ना किया और वहां पर कम यीशु मसीह ने जो है खिदमत किया, लेकिन बाकी इलाकों में वो मुसलसल खिदमत करते रहे। This formula set a stage for commissioning his disciples who have been spectators up until this point.
और ये जो स्टेज है वो हमें बताती है कि यीशु मसीह ने इसीलिए अपने शागिर्दों को चुना क्योंकि इलाके ज्यादा थे और इसीलिए उन्हें चुना गया ताकि वो खिदमत को कर सके. So it's important to understand that as Jesus was going through these villages in these circuits, healing and teaching, he was showing his disciples what he would expect them to do. और जब यीशु मसीह शहर शहर गांव गांव तालीम देते थे और बीमारों को चंगा करते थे तो वो इसलिए था ताकि अपने शागिर्दों को दिखा सके कि जब वो मुनादी के लिए भेजे जाएंगे तो यीशु उनसे वही चाहता है जो यीशु ने उनके सामने करके दिखाया. Now, I want you to understand the significance of what Jesus is going to do here. और आज मैं आपकी तवज्जो जो है इस बात पर लगाना चाहता हूँ कि यीशु ने ज़ाहिरी तौर पर वहाँ क्या कुछ किया. It is one thing for someone to have the authority to heal people, to cast out demons, and to say that he is going to inaugurate the kingdom of God. और पहली चीज हम देखते हैं वो बीमारों को अच्छा करता था. दूसरा इख्तियार हम देखते हैं कि वो बदबूओं को निकालने का इख्तियार रखता था. और तीसरी बात जो वो कहता है कि वक्त आएगा कि उसकी बादशाहत कायम होगी. But it's completely another thing to show that you have authority to delegate that authority that you have to other people. और ये बड़ी ताज्जुब और हैरान करदा बात है कि जो इख्तियार आपके पास है आप वही इख्तियार जो है वो दूसरों को भी दे. It would be like your best football or cricket player saying, I am going to give you all my abilities and you're going to be able to go out and play at the same level that I play. ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई जो खिलाड़ी है जो फुटबॉल खेलता है और अपना जो बेस्ट है वो किसी दूसरे को दे देता है. यानी वो फुटबॉल या अपनी एबिलिटी जो है वो दूसरों को दे देता है और जाके कहता है तुम बाकी इलाकों में जाओ और वही कुछ करो जो कुछ मैं करता हूँ. Of course, no one has the ability to do that. Only God could do that. और हम जानते हैं ये बात सच है कि यीशु के जो इख्तियार है या यीशु जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है. Because it's God who gives us all the abilities we have, and we are to use them to glorify Him, not ourselves. क्योंकि वो खुदा है और खुदा जो है अपने इख्तियार को देता है और जो कुछ खुदा देता है हमें चाहिए कि हम उसके जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें. So now we are seeing Jesus not only has the authority to go into these villages, heal people, and tell them about the kingdom of God, he can actually commission other people with that don't have that authority to do the same. और इसीलिए हम इस बात को समझ पाए हैं कि ना सिर्फ यीशु उनके गांव के अंदर जाता रहा उनके बीमारों को अच्छा करता रहा और उन्हें तौबा की तरफ लाता रहा बल्कि उसने दूसरों को भी चुना ताकि वही इख्तियार उन्हें दे और वो भी उसी तरह काम कर सके. Remember, this whole section is about, does Jesus have the authority to be the king that can inaugurate in the kingdom of God? और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आज का ये जो सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम यही सीखेंगे कि यीशु मसीह जो है इन सारी बातों पर इख्तियार भी रखते हैं और यीशु मसीह अपनी बादशाहत को कायम भी करेंगे जो हमें बताता है कि यीशु बादशाह है. So his disciples preaching of the kingdom of God message and doing exorcisms would attach them to Jesus. और अब शागिर्द जो है जाकर मुनादी करते हैं तौबा की और कोई कुछ करते हैं जो यीशु ने उन्हें करके दिखाया है क्योंकि यीशु ने अपना इख्तियार शागिर्दों को दे दिया. The urgency of this mission required that they take only their staff and sandals, not a bunch of things, but this was urgent and they should do this. और यहाँ पर एक और चीज हम देखते हैं कि जब उन्हें मुनादी के लिए शागिर्दों को भेजा गया तो उनको सिर्फ एक ही चीज साथ ले जाने की इजाजत है और वो है जूतियां पहना. इसके अलावा कोई और चीज उनको साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी गई.
He also told them to only take one change of clothes. That is, rely on the people you're going to minister to take care of you. और एक और बात जो हम इसमें सीखते हैं वो यहाँ पे लिखा है कि एक ही कुर्ता जो उन्होंने पहना होगा लेके जाना, दो दो नहीं। इस बात का मतलब क्या है कि जब तुम मनादी के लिए जाते हो, जिन इलाकों में जाओगे, तो वो लोग तुम्हारी इन चीजों का ख्याल रखते हैं। So Jesus, when he told them to go out, he said, I want you to rely on God's provisions coming from the hospitality of those who are willing to be open to the kingdom of God message. इसलिए यीशु ने कहा कि खुदा पर तवक्का रखो जब मनादी के लिए जाओगे, कि खुदावन तुम्हारे लिए मुहैया करेगा, और जो तुम्हारी मेहमान नवाजी करना चाहे वो कर सकता है, और उसी के घर में ठहरना। But I want you to understand that not everyone is going to accept this message. Many will also reject it. लेकिन एक और बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि जब मनादी के लिए भेजे गए हैं तो पहले से उन्हें बता दिया गया था शिगिर्दों को कि जिस मनादी को तुम करने जा रहे हो, इस बात को याद रखना कि हर कोई इसे कबूल ना करेगा। Jesus said, I want you to treat those who reject the kingdom of God message as the Judeans did with Gentiles. They wiped the dust off of their shoes and went on and told it to other people. और यीशु ने कहा कि जब मनादी के लिए जाओ, जो लोग तुम्हें कबूल ना करेंगे, और वो कबूल करने वाले कौन से लोग हो सकते हैं, चाहे वो यहूदी हो सकते हैं, चाहे वो गैर अक़वाम के लोग हो सकते हैं, तुमने क्या करना है, जो कबूल नहीं करेगा अपने पांव की गर्द को वहीं पर झाड़ देना। This is the same formula that God wants us to use today as we share the kingdom of God message. और ये ही फॉर्मूला जो इस शिगिर्दों को बताया गया था, आज मुझे और आपको भी बताया जा रहा है कि हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकें जो यीशु ने शिगिर्दों को बताया था। In fact, this next week, we're going to be sharing, even though Israel rejected Jesus as the Messiah and crucified him, he raised 3 days later from the dead, and God still is going to bring him back to inaugurate his kingdom forever. और अगली दफा हम सीखेंगे कि जिस तरह लोगों ने उसको कबूल ना किया और यहूदियों ने उसे जो है सलीब दी, मसलूब भी किया, तो भी खुदा ने अपने बेटे को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया, और वो बेटा कहता है कि मैं अपनी बादशाहत को कायम करूंगा। Notice that Jesus says God will judge those rejecting cities, those who had more light than other cities, more harshly than he did even Sodom and Gomorrah, other former godless cities. और इसीलिए यीशु भी कहते हैं कि खुदा जो है वो इंसाफ करेगा, और उन शहरों पर अफसोस किया गया जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया। और हम देखते हैं सदूम और अमूरा के इलाके पर खुदा का गजब आया था, यानी उस इलाके के रहने वालों पर। इसी तरह लिखा है कि जो इलाके खुदा को कबूल नहीं करेंगे, आखिर एक टाइम आएगा जो इंसाफ का होगा और उसमें हलाक किए जाए। In obedience, the 12, after being commissioned, went out and preached to Israel that they must repent and believe, for the time has been fulfilled and the kingdom of God is at hand. और हम देखते हैं कि इन शिगिर्दों को जिन्हें मुकर्रर किया गया था, इन्होंने फरमाबरदारी करते हुए, हुक्म मानते हुए जाकर मन्नाती की और कहा कि वक्त आ चुका है, इस्राएल के लोगों तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। Now let's read the A prime, Mark chapter 6, verses 30 through 32. आए मेरे साथ देखिएगा छठे बाब की 30 और 32 आयत को। और रसूलों के पास जमा हुए, और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत न मिली थी। बस वो कश्ती में बैठकर
अलग एक वीरान जगह में चले गए। आमीन। आमीन। Okay, so first of all, the designation of apostle for the 12 occurs twice, here and in chapter 3, verse 14. तीसरे बाब की 14 आयत को जरा पढ़ेंगे हम। As the opposition increased, Jesus became more focused on training the 12. और हम देखेंगे कि बैरूनी तरफ से मुखालफत ज्यादा थी, तो भी खुदा ने फोकस रखा ताकि उसके शागिर्द ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके। To clearly understand his identity and that his mission included suffering before glory. और हम देखते हैं इससे पहले कि यीशु मसीह जो दुख उठाए जाते दुख उठाते उसने इन 12 को चुन लिया, जो तीसरे बाब में हम पढ़ सकते हैं कि 12 को चुन लिया ताकि लोग जो है इस बात को समझ सके कि ये जो है यीशु मसीह की ग्लोरी को, उसके जलाल को जब देखेंगे तो उसके बाद ये 12 जो है मनादी के लिए दुनिया पर मौजूद होंगे। To rely on the Holy Spirit when doing ministry when he was not physically around. और जब मसीह यीशु जो है आसमान पर उठाए गए और अब जिस्मानी तौर पर इन 12 के साथ नहीं थे, तो इन्हें ये बात कही थी कि इंतजार करें और पाकरू का जब तक कि वो नाजिल ना हो जाए, और जब हो जाएगा तो तुमने क्या करनी है, मनादी करनी। To react in various ways to differing responses to their message. क्योंकि हमें पता है कि जब भी मनादी की जाती है तो हर शख्स का रद्दी अमल जो है वो मुख्तलिफ होता है। Now, when the disciples return, from their preaching, they report their success of casting out demons and healing the sick. और जब ये 12 मनादी के बाद वापस आए हैं तो यीशु को रिपोर्ट देते हैं, और क्या रिपोर्ट देते हैं कि उन्होंने बीमारों को भी अच्छा किया है और बदरू गिरफ्तारों को भी आजाद किया है। And this is just what he had commissioned them to do, as we see in 6:7. Let's reread chapter 6, verse 7. और आए मेरे साथ मरकस उसका 6 और उसकी 7 में पढ़ेंगे, जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया था। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर दो दो करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। आमीन। Notice that he gave them power over unclean spirits. That is, they had the authority to cast out demons. This is authority they didn't have prior to this. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इन 12 को क्या इख्तियार दिया गया था, बदरूहों पर, उन बदरूहों को निकालने का इख्तियार दिया था। और ये इख्तियार किसके पास था? यीशु के पास था। और यीशु ने किनको दिया? 12 को दिया। Then Jesus took them from the business of Bethsaida, that is the town where they were at, to a deserted place by boat. और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बैतसैदा के इलाके में गया। This was to give them rest because they had been successful in what God had commissioned them to do. और हम देखते हैं कि यीशु ने इन्हें जो है कश्ती के जरिए से भेजा था। भेजने की वजह क्या थी? कि अब वो आराम करें। क्यों आराम करें? कि जिस मकसद के लिए, जिस मिशन में के लिए यीशु ने इनको इन 12 को भेजा था, उसमें वो कामयाब हो गए हैं। अब उन्हें आराम की जरूरत है। Now, I want you to understand the point that God gives every person on this earth authority and power to proclaim his message. और यहाँ पर एक पॉइंट पर मैं आपकी तवज्जो लगाना चाहती हूँ, और वो पॉइंट क्या है कि यहाँ पर बैठा हर शख्स को खुदा ने एक खास इख्तियार दिया है। Mark is contrasting that Jesus delegated the 12 to go out and preach the nation of Israel should repent so the kingdom of God should come. That's their responsibility. और मरकस यहाँ पर खास तौर पर ये बयान करता है कि 12 को मुकर्रर किया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया मनादी करने का कि तौबा, इस्राएल के लोग तौबा करें क्योंकि खुदा की बादशाही उसके हाथ में। ये उनकी जिम्मेदारी थी जो उन्हें दी गई। In contrast, Herod is going to use the power that God has given him
for his own personal gain in his own personal pleasures, even at the expense of John the Baptist. और हम देखते हैं कि इसी तरह इख्तियार खुदा ने हमें भी दिया है और यहाँ पर शागिर्दों ने उस इख्तियार का इस्तेमाल किया और एक और शख्स को इख्तियार दिया गया और ये शख्स कौन है? हेरोदीस बादशाह। लेकिन हेरोदीस बादशाह ने जो खुदा की तरफ से उसे इख्तियार मिला था उसे अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, हत्ता कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर भी कलम कर दिया। Those who successfully do what Jesus commissions will find rest in Jesus. और जो 12 को इख्तियार दिया गया, जब वो अपने मिशन में जो है कामयाब हो गए तो उन्हें रेस्ट करने का क्या था। ये वो रेस्ट नहीं बल्कि ये वो रेस्ट है जो खुदा की बादशाहत के अंदर आएगी। हालेलुया। Those like Herod who use their authority for their own pleasure and gain will suffer humiliation and physical death. और जो है उस इख्तियार को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है उसके लिए क्या है? हमेशा की आग, यानी वो आग जो तैयार की गई है। Okay, so let's go ahead and read the B section, Mark 6:14 through 16 first. आए 14वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। और हेरोदीस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उससे मौजज़े जाहिर होते हैं। मगर बाज कहते थे कि एलिया है और बाज ये कि नबियों में से किसी की मानद एक नबी है। मगर हेरोदीस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है। आमीन। Now you can imagine as Jesus is doing all these miracles and casting out all these demons, the people are asking, who is this man? और हम देखते हैं जब यीशु मसीह तमाम मौजूदात को कर रहे थे, बीमारों को अच्छा कर रहे थे, बदरूह शख्स जिस शख्स के अंदर बदरूहें थी उन्हें निकाल रहे थे, तो हम इस बात को देखते हैं कि अब यीशु मसीह के उस इख्तियार की जो है वो मशहूरी होती जा रही है। Some believed he was Elijah returning from the dead. Others believed he was the prophet, while Herod believed that he was John the Baptist who he had killed. और लोग यीशु के बारे में क्या सोचते थे मौजूदों के मुतालिक? वो सोचते थे कि शायद कोई नबी है, कोई सोचता था एलिया है, कोई कहता था कोई पुराने नबियों में से जी उठा है। लेकिन हेरोदीस क्या सोचता था? वो कहता था यूहन्ना जो मर गया है जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है। Now, why would they say that he is Elijah? Let's turn back to Malachi chapter 3, verse 1. और वो ऐसा क्यों कहता था कि ये जो है वो एलिया है? मेरे साथ वापस निकालिएगा मलाकी की किताब चैप्टर 3, verse 1. देखो मैं अपने रसूलों को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो निगाहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हो आएगा, रब्बुल फाज फरमाता है। आमीन। So notice here they are thinking that Jesus was the messenger coming before the Lord, where John the Baptist was actually the messenger and Jesus is the Lord. और जितना यहाँ पर क्या लिखा है कि जब मसीह आएगा तो उसके आगे आगे कोई चलेगा, तो यहाँ पर कौन है? मसीह है जो नजात देगा और आगे चलने वाला कौन है जी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो उसकी राह को तैयार करेगा। Now let's turn to Malachi chapter 4 and read verses 5 and 6. चौथे बाब की 5वीं और 6वीं आयत मलाकी की किताब। देखो खुदावन के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा में आऊं और जमीन को मालून करूं। आमीन।
Notice that here they're thinking that Jesus is the Elijah that's going to come before the Lord comes. They're thinking he is the forerunner, not the Lord himself. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पुराने अहदनामे में ये पेशन गोई की गई थी कि इससे पहले कि मसीह आए उसके आगे जो है एलिया की रूह चलेगी, यानी एलिया की रूह जो है वो आगे आएगी। Notice that others believe he is the next prophet, that is, the prophet greater than Moses. और लोग सोचते थे कि ये जो है वो नबी है, यानी आने वाला जो है ये वो नबी है, यानी ये नबी जो है मूसा से भी बड़ा है। Let's turn to Deuteronomy chapter 18 and read verses 18 and 19. आए मेरे साथ देखिए सिश्ता 18वां बाप और उसकी 18वीं आयत। मैं उनके लिए उन्हीं की भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। आमीन। Notice here, although they see him as a man of God, that is, a prophet coming from God, they're not seeing him as the Messiah, the Lord, yet. यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि उन्हीं के अंदर से उन्हीं जैसा एक भाई चुनूंगा। तो वो लोग क्या यीशु मसीह को समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये हमारे जैसा ही है। हाँ, वो ये तो समझ रहे थे कि ये नबी है, लेकिन इस बात से ना वाकिफ थे कि वो नबी से भी बड़ा है, यानी मसीह है। Now, because Herod had been so evil to John the Baptist to kill him, Herod believes that Jesus is not a prophet, not Elijah, but he is actually John the Baptist who has come back from the dead. और जो हेरोदेस था वो एक बहुत ही शैतानी आदमी था और उसने जो है उस यूहन्ना का भी सर कटवा दिया। तो जब यीशु मसीह जो है वो मशहूर हुए और मौजूद जाहिर हुए तो उसे ये लगा कि ये मसीह दर हकीकत वही यूहन्ना है, क्योंकि वो नबी था, रास्तबाज था और मैंने सर कटवाया, तो अब ये वही दोबारा जी उठा है। Let's read Mark chapter 6, verses 17 through 29, please. मरकस उसका छठा बाब 17वीं आयत से लेकर 29 वर्ष तक हम पढ़े। क्योंकि हेरोदिस ने आप आदमी बेचकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदिस ने उससे ब्याह कर लिया था और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदिस उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी, हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि इसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका। आमीन। Did you go all the way through 29? Wait for a while. Okay. क्योंकि So, मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और मौके के दिन जब हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने उमरा और फौजी सरदारों और दलील के रईसों की जियाफत की और उसी हेरोदिसिया की बेटी अंदर आई और नाच कर हेरोदिस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वो फिलिप और बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज की कि मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से
उससे इनकार करना ना चाहा। बस बादशाह ने फिर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर कैद खाना में उसका सर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने अपनी माँ को दिया। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए और उसकी लाश को उठाकर कब्र में रखी। आमीन। Okay, so the reason that Herod believes that Jesus is the resurrected John the Baptist is to bring light to the evil that Herod had done when he arrested and killed John the Baptist for declaring the illicit pleasures that Herod was committing. और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हेरोदेस था उसका ईमान क्यों था कि ये यीशु मसीह दर हकीकत जो है वो यूहन्ना है, क्योंकि उसने यूहन्ना से बेजा बैर रखा, दुश्मनी रखी और उसी ने सर को कटवा दिया था। और उसको ये पता था कि यूहन्ना कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि वो रास्तबाज भी है और वो मुकद्दस भी है। और कलाम कहता है कि वो उसकी बातों को सुनता था और खुशी से सुनता था, वो कि उसने उसको कबूल नहीं किया था। Herod, as a leader, was a corrupt leader in that he took his brother's wife, Herodias, for his wife from his own brother. और एक और चीज जो हम हेरोदेस में बुराई को देखते हैं वो क्या थी कि हेरोदेस ने अपने भाई, जो उसका फिलिप्पस उसका भाई था, उसकी बीवी को यानी अपनी भाभी को उसने अपने भाई से लेकर उसे अपनी बीवी बना लिया था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। John the Baptist called him out on that, saying this was an evil thing to do, so he arrested John the Baptist. और हेरोदेस ने यूहन्ना को क्यों जो था वो कैद में डाला था, उसकी बड़ी वजह यही थी कि यूहन्ना ने उस पर ये जाहिर किया, से बताया था कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है, और इस बात से उसने उसको कैद में डाल दिया। Herod showed an even greater, more evil heart when he lusted after his brother's wife, who he took as his wife, her daughter, and now he's not just lusting after the wife, he's lusting after the daughter of the wife. और हम यहाँ पर क्या चीज देखते हैं कि ना सिर्फ उसने अपने भाई के साथ बुराई की और उसकी बीवी को ले लिया, बल्कि वो इस कदर जो अबलीस से भरा हुआ शख्स था कि उसके भाई की जो बीवी थी और उसकी जो बेटी भी थी, हम देखते हैं वो सारे के सारे गुनाह के अंदर और अबलीस के कामों पर चलने वाले लोग थे। This lusting resulted in him pledging to allow Herodias, his daughter, to have anything that she wanted, and so she wanted John the Baptist head on a platter, that is, to kill him. So now not only has he arrested John the Baptist improperly, but he's going to kill him also. और हम देखते हैं उनके अंदर अबलीस इतना काम कर रहा था कि जब ना सिर्फ जो है हेरोदिया जो थी वो औरत खराब थी, बल्कि उसने अपनी बेटी को तालीम भी गलत दी। और जब वो नाची तो जाहिर है आप इस बात को सोच सकते हैं, जब वो नाची होगी तो उसने किस किस्म का बहुता नाच किया होगा कि सब लोग खुश हुए और बादशाह भी उससे खुश हुआ। और उसने कहा कि तुम मांग, तो मैं आधी सल्तनत भी तुझे दे दूंगा। और उसने क्या मांगा? उसने कहा कि मुझे यूहन्ना का सर कटवा। John the Baptist, who's a messenger of God, his arrest and death are the result of a corrupt leader. God had given him authority to lead, and he used it for his own personal gain and own personal pleasure than glorifying God. यूहन्ना का कैद में जाना और यूहन्ना का कत्ल हो जाना एक ऐसे बादशाह की वजह से हुआ जिसको इख्तियार तो मिला था, लेकिन उसने उस इख्तियार का सही इस्तेमाल ना किया, क्योंकि वो रास्तबाज शख्स ना था। So Mark is contrasting Herod and his family versus the 12 that Jesus commissions. They go out and successfully proclaim the message of Christ, where Herod is using his authority just for personal pleasure, not wanting anything to do with glorifying God. और मरकस जो है अपनी संजील में दो बातें एक साथ लिखता है।
यानी उन 12 रसूलों के बारे में भी जिन्हें इख्तियार दिया गया था, जिन्होंने अपने काम को सही किया है, और इस हेरोदिस बादशाह के बारे में भी जिसे इख्तियार मिला था, बादशाही का इख्तियार, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल, उस इख्तियार का इस्तेमाल अपनी जात के लिए किया, ना कि खुदा के जलाल के। Now, as believers, one of the things that should be very important to us is not only will we follow Christ and we glorify him, but all of our family and lineage will do the same. और एक ईमानदार होने की हैसियत से ही हमारे लिए बहुत ही अहम और जरूरी है कि ना सिर्फ हम खुदा की तालीम पर चलें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, बल्कि हमारी मिरास, हमारे आने वाले बच्चे भी खुदा के नाम को उसी तरह जलाल दें। Here we have the family tree of Herod the Great, and you can see Herod Antipas, who we're talking about here, ruled from 4 BC to AD 39. आप ये स्क्रीन के ऊपर हेरोदिस का जो शजरा है, यानी उसकी नस्ल का नामा है, उसे देख सकते हैं। और जहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है, दर हकीकत हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो नाम होते थे वो एक का भी नाम होता था, आने वाले बादशाह का भी नाम उससे भी। तो हेरोदिस एंटापियस भी था एक, और हेरोदिस जो था, और यहाँ पे हेरोदिसिया जो उसकी फिलिपस की बीवी थी, उसके मुतालिक लिखा है। So notice you have Herod the Great at the top of the chart. He is the one mentioned in Luke chapter 1 and 2 and Matthew 2 that tries to kill Jesus when the Magi come and say, "We want to see the king." यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे हेरोदिस द ग्रेट लिखा हुआ है, और इसके हेरोदिस जो ग्रेट था, ये इसका हवाला आपको लुका उसके एक बाप में मिल जाएगा और मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाप में मिल जाएगा। ये वो बादशाह था जब जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी, और यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त मजूसी जो थे यीशु मसीह का पता ढूंढते ढूंढते इस बादशाह के पास पहुंचे थे, जिसने बाद में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कत्ल भी करवा दिया था। तो ये वो वाला बादशाह था। Herod the Great used the power and authority that God had given him for his own personal gain, killing God's messengers. और हेरोदिस जो ये वाला हेरोदिस था, इसने भी जो इख्तियार खुदा की तरफ से बादशाह का इसको मिला था, इसने उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और नबियों को भी कत्ल किया इसने, और बच्चों को भी कत्ल किया। Then, when he died, he left 4 of his sons his power in his different territories, and Herod Antipas and Philip were 2 of those people. और इस हेरोदिस जो ग्रेट था, इसके 4 बेटे थे, यानी अपनी बादशाह को ये 4 बेटों को सौंप के गया था, और ये 4 बेटे आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें आज जो है वो हम ये वाले हेरोदिस एंटिपस और फिलिप की बात कर रहे हैं, इन 2 बेटों की बात कर रहे हैं। And then notice that Herod Antipas takes Philip, his brother's wife, and marries her, and this is why John the Baptist was put into prison, because he called him out on it. और आज हम यही सीख रहे हैं कि इस हेरोदिस ने अपने भाई फिलिप की बीवी को ले लिया, जिसके मुतालिक यूहन्ना ने कहा कि उसे रखना तुझे रवा नहीं है, और इसी वजह से यूहन्ना को कैद किया गया। Okay, so Herod Antipas, the son of the great tetrarch ruler of Galilee, he appears in the New Testament more than any of the Herodian dynasty members. और हम नए एहतनामे में देखते हैं कि इस हेरोदिस जो ये वाला है, इसके मुतालिक जो है नए एहतनामे में काफी बातें लिखी हैं, जो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। His rule coincides with the ministries of John the Baptist and Jesus, as we see right here. और इसकी जो सल्तनत थी, हम देखते हैं कि इसकी सल्तनत जो थी वो यूहन्ना के दौर में और यीशु मसीह के दौर में थी, जिसे अभी हम पढ़ रहे थे। Herod plays a major role in 3 New Testament stories. और ये वाला जो हेरोदिस बादशाह है, अगर नया एहतनामे को हम देखें तो इसमें 3 ऐसी कहानियां हैं या स्टोरीज हैं जिसमें इसका बड़ा अहम किरदार रहा है।
The first one is the death of John the Baptist. और पहली जो हमने पढ़ा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल। The second one, and the greatest one, we're going to talk about it this next week with Easter coming up, is the crucifixion of Christ. He will play a major role in it. और जो इसकी दूसरी कहानी है जिसमें ये शामिल है वो हम अगली दफा पढ़ेंगे, जिस तरह कि ईस्टर जो है वो करीब है और हम देखते हैं यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है या मसलूबियत है उसमें भी इसका जिक्र है जो कि हम अगली दफा सीखेंगे। And the third one is the reference by Jesus in Luke 13, where Pharisees tell Jesus that Herod Antipas is trying to kill him. But Jesus says, tell that fox, he's not going to kill me. I'm going to Jerusalem to be crucified. और तीसरी जो इसकी हम जहाँ पर इसका जिक्र पढ़ते हैं वो बड़ा अहम है। और वो अहम क्यों है? क्योंकि इसने जो है यीशु मसीह को कत्ल करवाने की भी कोशिश की थी। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह के पास जब फरीसी आए थे, और ये आप हवाला लूका 13 वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। फरीसियों को क्या कहा था? जाके उस लुम्बड़ी को कह दो कि अभी मेरे ये वक्त नहीं आया कि मैं अपनी जान को दूं। So what we have seen today is God gives different people different amounts of authority, and those people use them differently, some for their own personal gain, while others use them to glorify God. आज हमने क्या सीखा है कि यीशु मसीह मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ इख्तियार देता है, लेकिन वो इख्तियार कुछ लोग खुदा की जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। The question is, how will you and I use the authority that God has given us on this earth? Are we going to use it for our own personal pleasures and our own personal gain, or are we going to use it to glorify God? और अब सवाल ये है कि हम यीशु के इख्तियार को जो है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जो इख्तियार मुझे और आपको दिया गया है। क्या उस इख्तियार का इस्तेमाल सिर्फ हम अपने ही फायदे के लिए करते हैं या खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं? Those of us who take this seriously, share this word, and help other people understand it are going to hear, well done, good and faithful servant, and be at rest with Jesus. और जो कोई यीशु के लिए जो है अपने इख्तियार का इस्तेमाल करता है और इस मैसेज को आगे देता है, वो यकीनन खुदा की बादशाही में जाएगा और मसीह के अंदर आराम को पाएगा। Those who use their position like Herod did will not only hear rebuke from Jesus, but suffer all kinds of bad judgments against Jesus. और जो कोई हेरोदेस की तरह उस इख्तियार को अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, वो जो है अपनी जिंदगी में दुख उठाएगा और आखिरी वक्त में जब यीशु अदालत करेगा तो वो सजा पाएगा। Let us pray. आइए दुआ करेंगे। Father God, this is such a powerful, powerful passage in that you give each one of us, you have commissioned us with authority and power on this earth. खुदा हम शुक्रगुजार हैं इस कुदरत बड़े कलाम के लिए। खुदा जो सिखाता है कि तूने हमें इख्तियार दिया, तूने हमें खास मिशन के लिए भेजा है ताकि उसकी वसीला से तेरे नाम को जलाल दे। We pray that you would give us opportunity to share your message with an unbelieving world. खुदा हमें फजल दे कि इस पैगाम को खुदा देख उन बेईमानों के साथ बांट सके ताकि वो ईमान लाए। And we pray through the power of the Holy Spirit that you would give us courage, provisions, and protections as we share this message. और खुदा हम दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह हमें हमारी मदद करे जब हम इस कलाम को फैलाएं। तो खुदा तेरा पाक रूह हमारी मदद करे, हमें अपनी पनाह में रखे ताकि तेरे कलाम की मुनादी बेहतर तरीके से कर सके। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में दुआ करते हैं। आमीन। Thank you. God bless Thank you. you. Thank you so much. God bless you. Have a great day.